Morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7 maths and our chapter is perimeter and area. So student, today we learn what is perimeter of circle. So perimeter of circle we can say that it's a circumference. Okay, perimeter means क्या होता है? Circle का perimeter is circumference of a circle. Okay, and what is the formula for perimeter of circle is the distance around a circular region. No, student, you are know what do you mean by perimeter? Perimeter is the region enclosed by a length enclosed by the figure. ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल? सर्कल के पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस. ओके, सो आप एक नेक्स्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस इज द सेम थिंग. सर्कल के लिए वो हो जाता है सर्कमफेरेंस एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और एनी अदर फिगर्स के लिए वो रहता है इट्स अ पेरीमीटर. ओके, understand? So let's find the perimeter of any circle, circumference of any circle. So if radius is given, okay, and diameter, so we know that radius is always half of the diameter. Okay, see, if this is a circle and this is the center, so it's called radius and it's a diameter. Okay, both center से होकर जाते हैं but diameter is always twice the radius and radius is always half the diameter. Okay, understand? So remember this thing. Okay, now if radius and circumference, so circumference क्या होगा? इसका अगर हम circumference find करना चाहें, so what is circumference? When we talk about circumference of that circle, so the circumference now here see 7 or 3.5. Okay, so let's see the relationship between diameter and circumference. Diameter is 7 centimeter, then circumference is 22 centimeter. Okay, so ratio of circumference to diameter is 22/7, that is 3.14. Okay, now if see here, अगर डायमीटर डबल हो जाता है 7 का 14 हो जाता है, सो सर्कमफेरेंस हमारा हो जाएगा 44 सेंटीमीटर एंड इट बिकम 44/14, दैट इज 3.14. सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन हियर? सी, यू कैन सी हियर, हम अगर हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सर्कमफेरेंस भी हमारा बढ़ रहा है. ओके, और उनका रेशो क्या हो रहा है? रेशो हमारा इक्वल आ रहा है, दैट इज 3.14 ऑलवेज. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 3.14. ओके, जो 3.14 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है. सो द दिस रेशो इज कांस्टेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पाई. हम इसे किससे डिनोट करते हैं? पाई. पाई का साइन कौन सा होता है बच्चों? दिस इज द साइन ऑफ पाई. ओके, पाई का साइन होता है ये, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप, और उसे पढ़ते हैं हम पाई. उसका मीनिंग क्या होता है? 22/7 और हम उसे लिख सकते हैं 3.14. Okay, and what is 22/7? 22/7 means C upon D, circumference upon diameter. Okay, understand? Where C represents circumference of a circle and D represent its diameter. Okay, understand? Or you can write it C is equal to pi into D, means circumference is equal to pi into D. D is diameter. ओके, एंड वी नो दैट अगर हम उसे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा पाई इंटू डी, और अगर हम उसे रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2πr. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. Example number 12. What is the circumference of a circle when the diameter is 10 centimeter? So we know that the formula for circumference pi into d. So what is pi? 3.14 into d is 10 centimeter. Okay, so our answer is 31.4 centimeter. Okay, so this is circumference of a circle. Okay, understand? Now सेम हियर हम इस टाइप से ही क्या करेंगे? सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे. अवर फॉर्मूला, इफ डायमीटर इज गिवन सो अवर फॉर्मूला इज पाई इंटू डी, एंड इफ रेडियस इज गिवन सो अवर फॉर्मूला इज 2πr. What is circumference of a circle? 2πr and pi into d. So this time you have to only do the examples. Okay,
you have completed example number 12, 13, 14, 15 and 16. Okay, now we can talk about area of a circle. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? अगर हम एरिया की बात करते हैं सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सी, ये सर्कल दिख रहा है, अगर हम सर्कल को इस टाइप से कट करते हैं, ओके, और उसे अलग अलग कट करते हैं और ट्रायंगल्स के शेप में रखते हैं, तो हमें किस टाइप से मिलेगा? कुछ शेप इस टाइप से मिल जाएगा जो 11.36 में मिल रहा है, ओके, दैट इज़। और अगर आप रफ फिगर की बात करें, रफली अगर हम इसकी बात करें, तो डेट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम जैसा दिखता है इस टाइप से, अगर हम सर्कल की सारी साइड्स को रख दें, ओके। सो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल होता है उसकी कुछ लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल की बात होती है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, डेट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अब हियर लेंथ आपको समझना पड़ेगा, लेंथ क्या है? लेंथ इज 1/2 सर्कमफेरेंस, बिकॉज यहाँ पर आधा है और यहाँ पर आधा है, ओके, अंडरस्टैंड। तो 1/2 सर्कमफेरेंस इंटू आर। सो 1/2 सर्कमफेरेंस क्या होता है? दैट इज 2πr। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज πr² इज आवर एरिया ऑफ अ सर्कल। इफ वी टॉक अबाउट area of circle, so our formula is πr², and always the value of pi is 22/7. Remember this thing, okay, understand? Let's do example number 17 also, 17 and 18, okay. So find the area of a circle of radius 30 centimeter. अब यहाँ पर 30 centimeter radius is given, so radius r is equal to 30 centimeter, so area of circle is πr², so you can write it 3.14 और 22/7 इंटू 30 का स्क्वायर, ओके। हियर 30 स्क्वायर है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, 22/7, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.14 लेनी है। किसी क्वेश्चन में दिया जाएगा 22/7, जहाँ 3.14 दी है वहाँ पर आपको 3.14 लेकर के सॉल्व करना है। 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 900। अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 900 में 3.14 का, सो 0 0 9 4 ज़ा, then 0 0 27, ओके। सो योर आंसर इज, आपको इसे प्लस करना है 900 और 0 0 0 0 6, 3 + 9 is 12, 1 कैरी आउट हुआ 8 and 2। हाउ मेनी प्लेसेस आपको डेसिमल दिख रहा है? 2, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद में जब आप उसका डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन ओनली सॉल्व द एग्जाम्पल्स, ओके, नो नीड टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.3, only you can solve examples, and if you want practice, so you can do question number 1st, 2nd, okay, understand? Now क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप, ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, ओके। सो सेमी सर्कल जो रहेगा, सेमी सर्कल का अगर हम पैरामीटर फाइंड करेंगे, मीन्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ a semicircle including its diameter. Diameter is given and we know that what is circumference of a circle? Pi into d. But ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 1/2 pi into d, ओके, मीन्स 1/2 22/7 into 10, okay, understand? So this way you can solve the questions. No need to solve the question again. I will told you 11.3 only you can solve. Question 7 you can solve, okay, and examples, all the examples you have to solve, okay students. Now conversion of unit, it's very important. We know that when unit is different, so we do not complete our question. So conversion of unit is very important, so you have to convert the unit, that is 1 centimeter square. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter,
and 1 hectare is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर. सी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर. और जब हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर एंड अगेन 10 मिलीमीटर. सो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर. अंडरस्टैंड. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर, बट वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, सेम अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे अगर आपको बताना है, सो 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. ओके, सो यू कैन राइट 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे बच्चों, 4, और वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस वे you can convert the unit. ओके, सो सी हियर 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, understand. So you can remember these things. So you have to solve when you have to solve the questions. ओके, नाउ सम एप्लीकेशन. सी हियर, अब हमें ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ आएगी. अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर देखा था. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. ओके, हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना सीखा है. अब सी द एग्जांपल, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed outside the park. Find the area of the path. ओके, हमें इस पाथ का एरिया फाइंड करना है. हमें 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं ABCD अंदर वाले रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ है मेरी 45 और ब्रेथ है मेरी 30. ओके, सो एरिया 45 इंटू 30, सो वी कैन गेट 1350 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो 45 में क्या ऐड हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बिकॉज इस साइड पर भी 2.5 सेंटीमीटर है एंड इस साइड पर भी 2.5 सेंटीमीटर है. ओके, सो बोथ साइड 2.5 सेंटीमीटर मिलकर के क्या बन जाएंगे, टोटल 5 सेंटीमीटर ऐड होंगे, दैट इज़ 50. वैसे ही 30 में भी हमारा टोटल 5 सेंटीमीटर ऐड होंगे बिकॉज 2.5 ऊपर है 2.5 नीचे है. ओके, सो टोटल 5 सेंटीमीटर दोनों में ऐड हो जाएंगे. सो हमारा हो जाएगा 50 इंटू 35. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 21. यहाँ स्क्वायर है, so we know that area of square is, what is area of square, side into side. Okay, so this way you can solve this question. Understand. See here, area of यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, एरिया ऑफ ABCD पहले तो हमने फाइंड कर लिया साइड इंटू साइड से 100 सेंटीमीटर 100 मीटर स्क्वायर से हमारा एरिया ऑफ ABCD आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. नाउ हमें पता है कि अ पाथ 5 मीटर वाइड रन अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क. अब इनसाइड पर हमारे पास में क्या है, स्क्वायर पाथ के इनसाइड में मीन्स ये वाली जो लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. इट्स 5 सेंटीमीटर इट्स 5 मीटर. ओके, सो 100 में से हम कितना माइनस करेंगे, 5 + 5 मीन्स टोटल 10 मीटर माइनस करेंगे. हमें ये वाला 100 दिया हुआ है तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना बचा, टोटल 90. ओके, अंडरस्टैंड. तो 90 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का आप एरिया भी फाइंड कर लोगे. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन. एग्जाम्पल 21 ऑल्सो. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 22, दैट इज़ द क्रॉस रोड. अब यहाँ पर each of with 5 meter run at right angle through the center of rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides. अब वो है पैरेलल है साइड के
और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 105 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब टोटल हमें एरिया टोटल कितना दिया है, 45 हमें पी एस दिया है। ओके, टोटल दिया है मीन्स ये हमारे पास में जो लेंथ है उसकी वो 45 है, ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, सो एरिया ऑफ द पाथ अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम एरिया पी क्यू आर एस फाइंड कर लेंगे प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच फाइंड कर लेंगे। ओके, और उसमें से एरिया ऑफ के एल एम एन माइनस कर देंगे बिकॉज ये वाला एरिया जो है वो डबल आ रहा है। ओके, सो हम एक बार उसे माइनस करेंगे, सो वी कैन गेट द आंसर इजीली। ओके, सो यू हैव टू डू 11.3 एंड 11.4 में ओनली दो क्वेश्चन, आपको तीन क्वेश्चन करना है। वो कौन से दो क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो यू हैव टू टेक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 7 मैंने बताया आपको। ओके, क्वेश्चन 12 आप कर लीजिए, वेयर सर्कमफेरेंस इज गिवन, एंड क्वेश्चन 7 I will told you. Okay, and you have to complete question number 4 also. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, द गार्डनर वांट टू fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he need to purchase. ओके, अब हमें रोप का बताना है कि रोप कितना परचेस करना पड़ेगा। इफ़ ही मेक 2 राउंड ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, सो ₹4 पर मीटर अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर। अब सर्कुलर गार्डन का डायमीटर हमें फाइंड करना है, 21 मीटर है उसका डायमीटर। अब डायमीटर, इफ डायमीटर इज गिवन, सो व्हाट इज गिवन हियर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, अब स्मॉल सर्कल की हमें बताया गया है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट जो गार्डनर को हमें कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 21, सो वी हैव टू फाइंड रेडियस मीन्स 21/2। 21/2 डेट इज ये क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई फॉर क्वेश्चन 4। ओके, सो हम क्या करेंगे, 21/2 इज इक्वल टू रेडियस। अब व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वी नो दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू हमें बताई हुई है उसने क्वेश्चन में, 22/7 लेनी है, इंटू आर की वैल्यू है 21/2, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, सो वी गेट 33 into 3. Okay, 33 into 2, so we get 66 meter. Okay, so since the rope make 2 round of fence, अब 2 राउंड हमें करना है तो 66 into 2 कर देंगे, बिकॉज उसे क्या करना है, 2 राउंड करना है। सो हम करेंगे 66 into 2, that is 132 मीटर। thus the length of required rope is 132 मीटर। ओके, अब ये 132 मीटर रोप तो चाहिए उसे, बट 4 into 132 करना है हमें। ओके, बिकॉज 1 मीटर का प्राइस कितना देना है हमें, ₹4। सो 4 into 132, सो वी गेट 528 इज अवर आंसर। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। आई विल टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इन 11.3। ओके, नाउ 11.4 में हम देखेंगे विच क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट। यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 4 में से कोई भी आप कर सकते हैं एक, बिकॉज सब एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी एग्जाम्पल किया लास्ट वाला, और इस टाइप से आपको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं और एग्जाम्पल सारे कंप्लीट करने हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीट आवर पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर। ओके,
this chapter we have completed, and yesterday we have start our revision for revision. Already we will completed for exponent and power, or practical geometry, or last chapter that is visualizing solid shape. Now we have revised the perimeter in area. Okay, have a good day, student.